I hope they will cover the every events for 3 days and will publish not only in the paper of Jamshedpur, also in the paper of outside Jamshedpur. I am really happy to observe that our faculty members and staff members are working day and night with Technica team for smooth conducting of this symposium. Mr. Burma, who has given us time and till time, he is with Honorable Director, sir, and without whom this symposium was not possible to conduct in our department. At last, but not the least, I thank all the volunteers who are directly or indirectly involved making this function a grand success. Thank you, Lord. Thank you, sir. Now, I request our Honorable Director, sir, to present the memento to our chief guest. Process as well. Overall, there's no major risk or disadvantages with using BHJ and BHQ. But it is required in every business to consider all aspects. Due to its hardness, the cost increases a little bit, but it's still lesser than the current methods that we're using. But if you want to combat problems that emerge in the future, we should begin the new alternative right away. The process is basically economical feasible as well as beneficial, but as an industrial costing related to it. First of all, costing due to mining. But as we know that when we are mining iron, we are only mining iron that will lead to a particular cost. But when we are using banded hematite, jasper and quartzite, this will lead to give us iron as well as silica in a huge amount, which will automatically reduces our cost. The next costing related to is transportation, which is almost comparable with iron. The third one is beneficiation and dressing costing, which is always needed for any ore and mineral. So when we compare it with iron, we come up with a solution that costing is almost similar. The product is manufactured from waste, so it acts as an extra source of income. It is a highly efficient process and it increases a company's profit. It is highly economical feasible as well. We are getting silica along with iron. We can say that BHJ and BHQ as a future and best alternative to iron and iron ores in the. We as future metallurgists believe that this method is a potential solution to our future dilemmas. These are a few books that we have referred while making this presentation. Thank you for hearing us out. If you have any questions and queries related, we are happy to answer them. नमस्कार फ्रेंड्स, टेक्निका 23 हमारे NIT जमशेदपुर जो पूरे भारतवर्ष की एक शान है, उसमें आयोजित की गई और बहुत एक बेहतर प्लेटफॉर्म हमारे टेक्निकल उन लोगों के लिए कि जो कंट्री को बदलने में अपने आप को एसेट बनाना चाहते हैं। तो मैं फॉर्चुनेट हूं कि CM वर्मा सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा सर कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, ये ऐसे प्रोग्राम जो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे फैकल्टीज़ को और पूरे इंटायर इंडिया के उन लोगों को जो टेक्निकल एस्पेक्ट में काम करते हैं, उसके प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, कितना इंस्पायरिंग है और इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ और ज़्यादा आगे है। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ टेक्निका 23 जैसे प्रोग्राम का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है दो चीज़ों के लिए। एक तो यह है कि कॉरपोरेट और एकेडमिया को हम लोग कैसे जोड़ें,
क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, उन सब का एंड एप्लीकेशन किस तरह से स्टूडेंट उसको इम्बाइब कर सके, उसके लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और आगे भी इस तरह की योगदान होने से ये कार्यक्रम बहुत सफल हो सकता है। दूसरी चीज़ें जो अभी इंडस्ट्री को जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, रिलेटेड टू डिजिटाइजेशन, इसमें भी स्टूडेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। विद देयर इनोवेटिव आइडिया दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू इंडस्ट्री। दैट इज़ व्हाई आई बिलीव दैट टेक्निका 23 कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर, मैंने देखा है कि जो हमारे यंग जनरेशन हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इतना इनोवेटिव और इतना ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं अपने काम के प्रति। ऐसी ऐसी रिसर्च उनके साथ है कि अगर उसके ऊपर थोड़ी सी असिस्टेंस की जाए तो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब मिरेकल हो जाएगा और पूरी दुनिया को हम एक रास्ता दिखाने लायक होंगे। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़े अच्छे तरीके से हम लोग नर्सरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि भारत के अमृत महोत्सव में 25 साल इतना रोल प्ले करे जिससे भारत हमारा विकसित हो जाए। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। तो भारत में जिस तरह से जो ग्रोथ हो रही है और उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जो कि हम लोग अभी भी देख रहे हैं। अगर आप देखिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ को जो प्रोजेक्ट किया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने और जब जगह ऑलमोस्ट 7% के ऊपर ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है। और इसमें यदि ये स्टूडेंट अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ आगे आते हैं तो इंडस्ट्री को भी हेल्प मिलेगी और कंट्री को भी हेल्प मिलेगी। सर, तो आप जैसे जो कैप्टन हैं, क्योंकि आप लोग जहाँ भी हैं हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जितने यंगस्टर्स हैं, यंग चैप्स के लिए आप कैप्टन हैं, तो सर आप लोगों का असिस्टेंस हमेशा मिलता रहेगा हमारे एनआईटी और बहुत सारे ऐसी संस्थान को। बिल्कुल, मैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट की तरफ से आप लोग को एश्योर करना चाहता हूँ कि जो भी हमारी हेल्प होगी वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव एक्सटेंड ऑल द हेल्प टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ एनआईटी जमशेदपुर। जी, थैंक यू सर, क्योंकि टाटा स्टील अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है और स्टील हम बनाते हैं 10 मिलियन टन इसी शहर में, लेकिन हमको पता है कि यहाँ के जो ब्रेन होते हैं वो पूरी दुनिया में हर सेक्टर में एक्सेल करते हैं। सर प्लीज़ आप कुछ बताइए कि आज के कार्यक्रम के बारे में। ये आज का कार्यक्रम जो एनआईटी जमशेदपुर में हो रहा है, ये एक बहुत ही यूनिक कार्यक्रम है, इसलिए कि ये जो है स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और एंड दिस प्रोग्राम इज़ वेरी गुड फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज़। तो स्टूडेंट्स को एक चांस मिलता है इंडस्ट्रीज़ में विज़िट करने के लिए और वो बहुत कुछ इंडस्ट्रीज से सीख करके यहाँ अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनको और भी बहुत सारे इस प्रोग्राम के सहारे लर्निंग्स आने का चांस है, क्योंकि यहाँ कुछ मॉडल डेवलपमेंट के लिए भी प्रोग्राम है। उससे वो स्टार्टअप कैसे करेंगे और इंटरप्रेन्योरशिप का जो नॉलेज है वो सब इनको मिलेगा। सो आई थिंक ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और एक यूनिक वे से किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ आपसे बात करके, क्योंकि आप हम लोगों के एनआईटी के गौरव, पूरे भारत के गौरव हैं सर। आप प्रोफेसर के शुक्ला सर। सर मैं जानना चाह रहा था कि जैसे इंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस लीडरशिप डेवलप करने की परंपरा हमारे टाटा की रही है और पूरे हमारे झारखंड और पूरे देश की रही है, तो सर उसमें जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो स्टूडेंट्स लाते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, जैसे इंडस्ट्रीज में आप लोग विजिट करवाते हैं, उनसे वो सीखते हैं, तो इससे बड़ी मजबूती और बड़ा स्ट्रेंथ मिलता है स्टूडेंट्स को। तो सर आपने जो ये नई परंपरा की शुरुआत की आपके आने के बाद कि एकदम बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स को एकदम रूबरू होना पड़ता है इंडस्ट्री से और एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज और अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ वो काम कर रहे हैं, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे जारी रहे और मजबूती से काम करें। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज की तारीख में अगर सस्टेन करना है तो हमको अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है, जैसे अभी श्री वर्मा साहब ने और भगत जी ने भी कहा कि स्टूडेंट्स को जो हम थियोरेटिकल नॉलेज तो देते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज लैब स्केल में देते हैं। रियल फील्ड में क्या हो रहा है उससे पता होना चाहिए, जिससे कोई डिस्कनेक्ट इंडस्ट्री और एकेडमिया में ना रहे और हमारा स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी रहे। उसके लिए जो हमने बदलाव किया है और अभी जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आई है वो इसी तरह फोकस कर रही है कि हमको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना पड़ेगा, एक होलिस्टिक एजुकेशन देना पड़ेगा। इसके तहत हम लोगों ने कंपल्सरी कर दिया कि इंटर्नशिप 8वां सेमेस्टर पूरा एक सेमेस्टर 6 महीना बच्चे को जाके इंडस्ट्री में बिताना पड़ेगा और वो जो काम करेगा वो यहाँ का प्रोजेक्ट का पार्ट होगा। और हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी, जो बच्चे जिनको कोशिश कर रहे हैं कि इंटर्नशिप मिल जाए, जिनको नहीं मिल रहा, उनको भी उसी तरह के इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम दे रहे हैं।
और बच्चों को अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, इस सेमेस्टर से शुरू कर लिए। आपको बता दें कि 10 तारीख को हम उसका कुछ इवैल्यूएशन भी करेंगे। हमने अपने स्टूडेंट से आइडियाज़ मांगी हैं, जिनकी आइडियाज़ को हमारे एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स रहेंगे, अगर इवैल्यूएट करेंगे और वो कॉमर्शली वायबल होगा और आगे बढ़ाया जा सकता है तो हम संस्थान की तरफ से उनको 1-1 लाख रुपए भी देंगे अपने आइडिया को परस्यू करने के लिए। और हमारा लॉन्गर टर्म में ड्रीम ये है कि हम यहाँ पे एक स्टार्टअप और रिसर्च इकोसिस्टम बना दें, जिससे कि हमारे बच्चे जो कि अपना यहाँ पे उनको हम प्लेटफॉर्म दे काम शुरू कर, हमारे बच्चे नहीं, किसी भी संस्थान के बच्चे हों, एलमनाई हों या कोई भी सोशल आदमी भी आ सकता है, अगर उसकी कुछ आइडिया, हम उसको नर्चर करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म करेंगे, जिससे कि वो बेसिक फोकस ये है कि वो अपना लाइवलीहुड भी करें और जॉब क्रिएट करें। तभी कंट्री का प्रोग्रेस हो सकता है, जो हमारा ड्रीम कंट्री का है $5 ट्रिलियन इकॉनमी का, और या अभी वर्मा जी ने कहा जीडीपी ग्रोथ 7, या हम उसको 10 से ऊपर ले जा सकते हैं जब हर आदमी कंट्रीब्यूट करेगा। और उसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सब साइलोज में नहीं रह सकते हैं, उनको भी इंडस्ट्री के साथ आगे कंधे से कंधा मिला के, और साथ ही इंडस्ट्री को भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आना पड़ेगा कि कैसे कैरिकुलम में क्या वो चाहते हैं बदलाव करें। दोनों को साथ मिलकर एक सिनर्जिस्टिक वे में तो निश्चित रूप से हम कर सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। सोना सर आग में तब के ही कुंदन बनता है, और आप लोगों ने सर अपने गोल्ड को कुंदन बनाना शुरुआत कर दिया है। और ये मैं देखता हूँ कि सर इंडस्ट्री में जैसे कोई रिसर्च और इनोवेशन होता है तो बहुत सारे ऐसे बाइलॉज होते हैं जो हम लोगों को फुलफिल करना होता है। हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमी को अब मीट कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए अब G20 के भी हम लोगों का चेयरमैनशिप है, और प्लस अब बहुत ऐसे इंटरनेशनल फिनोमेनन में हम लोग अपने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो क्या हम अपने NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बाहर के भी ऐसे कोई टेक्निकल जो एसेट्स हैं, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जहाँ से हम लोग उनको मीट करवाएं, उनसे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या उनसे रूबरू करवाएं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स में और स्ट्रेंथ आए और हम एक दूसरे को जो अपना क्वालिटी एक्सचेंज कर सकें? हाँ, इस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। अभी हम लोग जैसे ऑनलाइन के माध्यम से जो बाहर जो हमारे एलमनाई हैं, जो दूसरी जगहों पे है, इंडस्ट्री में है, लीडर्स हैं, उनको ऑनलाइन लेक्चर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। अपने बच्चों को हमने जो भी अभी कम से कम इंडिया में अगर कोई भी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल या नेशनल होता है जहाँ पीयर्स आते हैं, उनको जाने के लिए हम फंडिंग भी कर रहे हैं, वो जाके जाएं, उनको इनकरेज कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस संस्थान में कई इस तरह के कार्यक्रम, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम करा रहे हैं। अभी हमने 2 महीना पहले कराया था, जिसमें काफ़ी लोग आए थे और हमारे बच्चे अपना पेपर प्रेजेंट किए और लोगों से इंटरैक्ट किए। और निश्चित रूप से हम इस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा, जैसे अभी हमने IIT मद्रास से MOU किया है कि अगर हमारा बच्चा चाहे तो वहाँ आएंगे और आगे वो काम कर सकता है। ऐसे ही दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी हम क्रेडिट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं कि अगर वो स्टूडेंट चाहे इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लेना चाहे। दूसरा, ऑनलाइन के माध्यम से हमने ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो कोर्स ऑनलाइन के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है उसको सीधे वो कर सकता है और उस कोर्स को करे। उनका एग्ज़ाम दे के क्रेडिट लाए हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, या कोर्स वहाँ से करें, हम एग्ज़ाम लेके क्रेडिट ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि स्टूडेंट इंडस्ट्री में जाए, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में इंटरैक्ट करे, और जो भी बेस्ट है अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि अब हम ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, जो भी जहाँ पे अच्छा है, सर्वोत्तम है, वो ले। मेरा मंत्र यही है, मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप अपना सर्वोत्तम दीजिए संस्थान को या देश को, और जो यहाँ का सर्वोत्तम है वो लीजिए, तभी दोनों जाके जब दोनों सर्वोत्तम मिलेंगे तभी अत्युत्तम होगा। जी वाह, कितनी सुंदर बात सर ने कही हमारे डॉक्टर साहब ने कि सर्वोत्तम लीजिए, सर्वोत्तम दीजिए। ये बिल्कुल एक ऐसा मंत्र है कि जो पूरे देश और विश्व को आगे बढ़ाता है और हमें मजबूत करता है। सर, मैं रजीत सर से बात करना चाहूँगा कि सर, आपने जो इतने सुंदर आयोजन और आपके इनोवेटिव आइडियाज़ और प्लस स्टूडेंट के साथ एकदम ऐसा लगता है कि आप उनकी दिल की बातों को सुन लेते हैं और उनकी धड़कन में एक ऐसी जो डेवलपमेंट की धड़कन बजती है कि नहीं, हमें देश को और अपने आप को आगे बढ़ाना है, देश को कुछ करके दिखाना है। तो आप जो इन सब यंग चैप्स के साथ काम करना शुरू किए हैं, उनको एक आइडियाज़ देना शुरू किए हैं, तो सर ये आइडिया में क्या क्या चैलेंजेज आपको पेश आ रहे हैं जिसको दूर किया जाए तो ये काम और फास्ट हो सकेगा? हम लोग बस इतना ही चाह रहे हैं कि उसके मन में एक प्रेरणा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसको एक रास्ता दिखे कि आज लोग क्या क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना है। अगर वो उसके मन में आ जाता है तो फिर बाकी सब काम वो अपने कर लेते हैं। तो हम लोग जितना भी कर रहे हैं, ये सब शिक्षक मिल करके या अपना इंस्टीट्यूट का डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हो रहे हैं, और सब एक ही प्रयास कर रहे हैं कि अब स्टूडेंट खाली ये नहीं सीखे कि हमको पास करना है, हमको नंबर लाना है, हमको सीखना है, हमको कुछ करना है, ये भावना उसमें आए। यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब मिल करके।
और उसमें जैसे अभी आज के श्री CM वर्मा जी हैं, वो सीनियर जनरल मैनेजर हैं टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट के, या AN भगत जी हैं, वो सरफेस इंजीनियरिंग के हेड हैं। तो ऐसे डिफरेंट फील्ड के जो लोग हैं जो वास्तव में प्रैक्टिकली अपने यहाँ काम कर रहे हैं और जो वर्ल्ड लीडर हैं, वो जब इंस्टीट्यूट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके मन में आता है कि अरे ये भी फील्ड है। और उनके मुंह से निकलता है इंडस्ट्री जाने के बाद, अरे हम तो नीरस सब्जेक्ट समझते थे मेटलर्जी को, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ करने को है। तो निश्चित रूप से मटेरियल बहुत चेंज ला सकता है और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो जो दुनिया की आवश्यकता है, पहले भी हमारा संस्थान और हमारा मेटलर्जी डिपार्टमेंट भारत में सबसे अच्छा माना जाता था। और एक समय के बाद था, मुथुरमन जी आए थे यहाँ जब वो चेयरमैन थे, तब उन्होंने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा था कि उनका एडमिशन हुआ था IIT मद्रास में, और उस समय RIT नाम से यह था, तो उनको लगता था कि हम RIT में पढ़ते मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का उस समय में ये स्थिति था। तो हम फिर से उस ग्लोरी को लाना चाहते हैं कि IIT हो या कुछ भी हो, लड़के छोड़ करके NIT आना चाहें, क्योंकि मेटलर्जी के लिए इससे अच्छा वातावरण और भारत में कहीं नहीं है। यही ये के साथ हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, मेटलर्जी ही नहीं, बहुत सारे विभाग हमारे ऐसे NIT के हैं कि जो कि वर्ल्ड क्लास हैं, बेंचमार्क हैं। और आज जैसे कहा जाता था कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है, मतलब स्टूडेंट्स और हमारे ये जो यंग चैप्स हैं, जो यंग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अपने स्टडी कर रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस ओर जमाना चलेगी जिस ओर वो चलते हैं। क्योंकि भारत से गए हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स पूरे दुनिया के GDP को, पूरे दुनिया को बनाने का काम करते हैं। तो ये क्रिएटिंग वर्ल्ड का जो एक शब्द है हमारे भारत से निकला है, और भारत पूरे विश्व को बनाती है, विश्व को राह दिखाती है। उसी तरह NIT के स्टूडेंट्स और प्लस हमारे जमशेदपुर में जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो बिजनेस लीडर हों या एजुकेशन लीडर्स हों, जो सभी एक मंच पे आकर उस स्टूडेंट को एक थ्रेड देते हैं, एक उसको सूत्र बताते हैं, एक उसको फार्मूला देते हैं, और असिस्टेंस के लिए 24 आवर तैयार रहते हैं। ये अपने आप में सैल्यूटेबल है, और उसको सैल्यूट करते हुए डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा, नमस्कार।